हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपॉलॉजी के साथ कि मैं अभी भी हु एम आई वाली वीडियो पे काम कर रहा हूँ। वो एक लंबी वीडियो है, उसको बनाने के लिए मैं एवरीडे थोड़ा थोड़ा टाइम देता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है और मुझे दूसरी चीज़ों से टाइम निकालना पड़ता है और लाइफ में दूसरी ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। तो अगेन आई अपोलोजाइज़। मैंने सोचा था आज तक आज वो वीडियो आ जानी चाहिए थी, बट कल आ पाएगी अब वो शायद अभी भी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल तक वो वीडियो आ जाए। तो सॉरी फॉर दैट। एनीवे, आज मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें अभिजीत चावड़ा जी बात कर रहे हैं कि न्यूटन स्टैंड करता है इंडिया की, क्योंकि मैंने हेडलाइन पढ़ी है सिर्फ, टाइटल। तो न्यूटन स्टैंड करता है इंडिया की ओरिजिनल डिस्कवरी पे, जो कि समझ में आने वाली बात है, क्योंकि नंबर सिस्टम पूरा का पूरा इंडिया से आया था, ओरिजिनेट हुआ था। तो आई गेस पूरी की पूरी मैथमेटिकल जो दुनिया की अभी तक की सिचुएशन है वो स्टैंड करती है इंडिया की ओरिजिन ग्राउंड पे। और अगर मैथ तो साथ ही साथ फिज़िक्स भी, और फिज़िक्स तो साथ साथ केमिस्ट्री भी। तो एनीवे, देखते हैं उनका क्या कहना है वीडियो में, और फिर बात करेंगे। I have always wondered how Newton and Leibniz both derived equations of differential calculus at the same time. A concept can be devised by a number of people, but from history we get that only one at a time gets the equations right, while they both contributed to the field of mathematics. What does the situation mean? That they both learned the equations from another source and made it their own. Listen, it's सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, भाई इस क्वेश्चन को पढ़ के ही मुझे लग रहा है कि जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा वो डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो मुझे लगता है आई हैव बिटन मोर देन आई कैन च्यू, क्योंकि न्यूटन ऑफ कोर्स हम सबने नाम सुना है, लीबनिट्ज का मैंने नाम भी नहीं सुना। ridiculous that two guys, one in the island of England, one on the island of England, and one in Germany, came up with the exact same discovery of differential calculus, which nobody had ever done before in Europe, in the same year, at the same time. It's ridiculous. What really happened is that calculus was discovered in India. It is known to have been discovered in India at least a century before these two individuals existed. And most likely it dates back to way before that. आई थिंक सेंचुरी से इनका मतलब है 1000 साल। सेंचुरी 100 साल को कहते हैं, 1000 साल को मिलेनियम कहते हैं। ये आई थिंक मिलेनियम कहना चाहते थे, लेकिन सेंचुरी निकल गया, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो कैलकुलस या की जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको आर्यभट्ट के काम में भी मिलती हैं। और आर्यभट्ट वाज समवेयर अराउंड 300 to 400 CE, और न्यूटन वाज समवेयर अराउंड 600, आई डोंट नो, 300 400 500 समथिंग लाइक दैट, इन्हीं 200-300 साल के बीच में। डेट्स याद नहीं रहती हिस्ट्री की, मैं भी उन लोगों में से हूँ जिनको तो और आई थिंक और न्यूटन हम सबको पता है 16th सेंचुरी यानी कि 1600 यानी कि 15th सेंचुरी में आए थे। तो आई थिंक ये मिलेनियम कहना चाहते हैं। So the earliest known evidence of calculus, of infinite series, of differential calculus, and so on, comes from the Kerala School of Mathematics. A century, more than a century before Newton and Leibniz claimed to have made this discovery. And at the time, we had these so-called, what are they called? Jesuit priests, who were going Roaming around around. India Yeah. and trying to acquire various forms of Indian knowledge and wisdom. So the Jesuit priests are the scientists of the Vatican. They are priests. They are employed by the Vatican. Scientists or researchers? But they go around the world trying to acquire scientific knowledge. And they will bring it back to the West, and then it will be used in a variety of forms. So all of the, for instance, you have the Kepler's law of planetary motions, the Kepler's 3 laws of planetary motion. These 3 laws, he was able to come up with these 3 laws based on an enormous amount of astronomical data. That astronomical data came from India. It was Indian astronomical data that he examined and studied for a number of years, and on the basis of that, he was able to come up with the Kepler's laws of planetary motion, the 3 laws. Excuse me. Similarly, these two guys, Newton and Leibniz, I'm not saying they were not good scientists. Newton was one of the greats, and he said
that if he has made any great progress in science, it's because he stood on the shoulders of giants. He has made this statement. He has said this. Look it up, standing on the shoulders of giants. बड़ी फेमस स्टेटमेंट है. आपको शायद और जैसे आर्ट वर्क या इन चीज़ों में आपको कोट होती हुई भी स्टेटमेंट मिल जाएगी. Newton said that, but he did not identify the giants on whose shoulders he stood. So it's clear that all of this knowledge came from India. It's becoming more and more clear with every passing year, with more information coming out, with all of this knowledge. और उसने आइडेंटिफाई नहीं किया या साइट नहीं किया, इसको साइटेशन कहते हैं एकेडमिक्स की लैंग्वेज में, जब आप किसी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन या ओरिजिनल सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो, या फिर मान लो जैसे कोई सर्वे हुआ है, ठीक है, उस सर्वे के आधार पे आप कुछ लिख रहे हो या कुछ आर्टिकल लिख रहे हो या कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो आप साइट करोगे. साइट करने के पैरामीटर्स होते हैं कि इस तरीके से साइट करना है. डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल लेवल के पैरामीटर्स होते हैं कि आप ऐसे ऐसे साइट करोगे, उसका लास्ट नेम लिखोगे, ये कैपिटल में होगा, ये स्मॉल में होगा, ईयर लिखोगे, पेज नंबर लिखोगे जिस बुक से आपने ये साइटेशन ली है. तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइटेशन कि इसके सेट पैरामीटर्स हैं, वो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे. जो लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं या जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं उनको पता होगा इस बारे में डेफिनेटली. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या है? अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसको कहा जाता है, एक वर्ड है एकेडमिक लैंग्वेज में कि प्लेजराइज. इसके लिए वर्ड है प्लेजराइज, कि आपने प्लेजराइज किया है किसी और का वर्क. और अगर गली की आम भाषा में कहा जाए प्लेजराइज का मतलब क्या होता है? चोरी करना. आपने किसी और का वर्क चोरी करके, कॉपी पेस्ट करके, टीप के दुनिया के आगे अपना नाम पीछे लगा के रख दिया है. तो बेसिकली ये इतना सीरियस मुद्दा है आज के टाइम में. ऑफ कोर्स न्यूटन आज से 500 साल पहले आया था, तो ये चीज़ें शायद, मैं ऐसा नहीं कहूँगा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती होंगी, क्योंकि मैं फुली श्योर हूँ कि वो लोग हमसे ज़्यादा नहीं तो कम इंटेलिजेंट भी नहीं थे और सेम चीज़ें होती होंगी. तो अब उसने क्यों साइट नहीं किया, इसकी एक डेफिनेट नहीं रीज़न बताई जा सकती. कोई भी रीज़न हो सकता है क्यों उसने साइट नहीं किया, है ना. इसका रीज़न मैलिस भी हो सकता है, इसका रीज़न अनअवेयरनेस भी हो सकता है. तो ये इंडिविजुअल पे है कि हम किस चीज़ को एट्रीब्यूट करें उस रीज़न को. मैलिस, ओके एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैलिस का मतलब कि वो नहीं चाहता था किसी और को क्रेडिट मिले, ठीक है, ये मैलिस है. अनअवेयरनेस है कि उसको पता ही नहीं था कि ये कहाँ से आया है, किसी सोर्स से उसे मिला और पर उसे पता ही नहीं था कि ये किसको साइट करना है. ये दो हो सकते हैं ओपिनियन. इन्होंने एक चीज़ बोली कि जेजुइट प्रीस्ट जो होते थे, यस, ये अभी पहली बार जब इन्होंने जेजुइट प्रीस्ट की बात की है तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में. एक्चुअली जो प्रीस्ट होते थे पोर्चुगल से, स्पेन से, सबसे पहले इन कंट्रीज से आने शुरू हुए, स्पेशली पोर्चुगल से. पोर्चुगल, अगर आपको नहीं पता, दुनिया का पहला यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट पावर पोर्चुगल है एक्चुअली. आज के टाइम पे वो एक बहुत ही छोटी सी इनसिग्निफिकेंट कंट्री है ऑलमोस्ट. लेकिन इनसिग्निफिकेंट तो नहीं कहना चाहिए, बट एक बहुत छोटी कंट्री है. उसकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इंटरनेशनल मैटर्स में से नहीं है. बट उसका इफेक्ट अगर आपको देखना है तो ब्राज़ील जैसी कंट्री, जो कि वन ऑफ द जायंट कंट्रीज है दुनिया की, बोथ पॉपुलेशन और एरिया में तो इंडिया से भी बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है. आई थिंक 5वें नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है. वहाँ पे लैंग्वेज पोर्चुगीज़ है. साथ ही आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अंगोला है अफ्रीका में एक बहुत बड़ी कंट्री, वो भी पोर्चुगीज़ ही बोलते हैं. एनीवे, हो सकता है मैं गलत हूँ वैसे उसमें, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ इस बात का. तो उनका इतना बड़ा वो था. वहाँ से जेजुइट प्रीस्ट निकले, वो इंडिया आए, वो जापान गए. आपको जापान में जेजुइट प्रीस्ट की बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी. फिलीपींस गए, फिलीपींस में आपको उनकी स्टोरी मिल जाएंगी. फिलीपीन आज के टाइम पे शायद दुनिया की सबसे ज़्यादा कैथोलिक कंट्री है, जबकि वो एक पैसिफिक ओशन की एक आइलैंड कंट्री है. तो वहाँ पे कैथोलिसिज्म इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुआ है, सोचो, इमेजिन करो. तो ये पूरी दुनिया में गए थे. और क्योंकि ऑफ कोर्स जो ये लोग होते थे ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स होते थे. इतनी सारी जो आप रिलीजियस बुक्स हैं, ये पढ़ने के लिए, इसको पढ़ने के लिए जितना कंसंट्रेशन, जितना मेहनत चाहिए, अगर आपके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है तो नहीं आ पाएगी ये चीज़ें. तो जिस भी रिलीजन में आप बहुत ज़्यादा
हाई लेवल के लोगों को देखते हो ना, जो लिटरेट हैं उस रिलीजन की इन्फॉर्मेशन के साथ, वो लोग बहुत इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड होते हैं। ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है, बहुत सिंपली अंडरस्टैंड हो जाने वाली बात है। तो एनीवे मैंने कभी ये नहीं रियलाइज़ किया कि हाँ ऑफ कोर्स वो लोग मटेरियल उठाते होंगे और लेके जाते होंगे। तो यस, पॉसिबिलिटी है, बट मैं 100% इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि अनलेस अनटिल उन लोगों ने क्लेम किया है या कोई चेन ऑफ सोर्स मिल जाता है, उसका रीज़न ये है कि कई बार ऐसा होता है कि सेम टाइप की डिफरेंट डिस्कवरीज दो डिफरेंट जगह में एक साथ या डिफरेंट टाइम्स में होती हैं विदाउट एनी कनेक्शन। फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस ने आई थिंक 2000 साल से भी पहले, जब भी पाइथागोरस था तब लिखी थी, या ही केम अप विद दैट, और इंडिया में वो थ्योरम भी एग्जिस्ट करती थी। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ग्रीस इंडिया से कैसे पाइथागोरस को मिली होगी, वो हो सकता है मिली हो, बट चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन लाइंस कम थी उस टाइम पे। इसी के साथ एक और एग्जांपल मैंने शायद देखा था, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट की डिस्कवरी भी आई थिंक जर्मनी में और इधर यूएसए में या फिर इंग्लैंड में एक साथ हुई थी। फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स ये डिफरेंट तरीके के जिसने कि बाद में कैमरा या फिर रिकॉर्डिंग, बेसिकली जो पुराने ज़माने के जाइंट कैमराज होते थे उनकी डिस्कवरी या उनकी मैन्युफैक्चरिंग को के लिए रास्ता पेव किया। और फिर बाद में टीवी वगैरह बहुत सारी चीज़ें, फिर कैमरा आया तो फिर उससे फिर कम्युनिकेशन का एक बहुत लंबा साधन खुल गया। तो ये है ऐसे एग्जांपल्स, बट अगर 80% भी चांस है तो दैट्स अ डिसेंट चांस। This Indian scientific knowledge, whether it is algebra, whether it's trigonometry, whether it's calculus, infinite series, whatever, all of that came out of India, made its way first into the Arabic world, yeah. sometimes straight into Europe, like in the case of calculus. So that's what happened. All of these are Indian inventions. ओके, ये भी अगर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, क्योंकि कैसे कि एक तरीके से इंफॉर्मेशन उठी, हॉप इन हुई अरब वर्ल्ड में और हॉप इन फर्दर हो गई यूरोप में। उसका रीज़न ये था कि बिटवीन 10th and 12th सेंचुरी अरब में अब्बासिड कैलिफेट थी, जिन्होंने इंफॉर्मेशन के फ्लो को या एजुकेशन को बहुत हाई लेवल पे प्रायोरिटी दी। आपको जान के हैरानी होगी, एक ग्रुप था, उनको मुतज़िलाइट्स कहते हैं, जो वहाँ पे था। इनफैक्ट जबकि अरब वर्ल्ड जब से 6th सेंचुरी के बाद इस्लाम आया तो तब से बहुत ज़्यादा हाईली रिलीजियस कॉन्सेंट्रेटेड जगह है, लेकिन उस टाइम पे जो एक ग्रुप था मुतज़िलाइट्स का, वो इनफैक्ट रिलीजन को भी क्वेश्चन कर देते थे और उनको काफ़ी रिस्पेक्टफुली देखा जाता था। उसके बाद एक सर्टेन इंडिविजुअल आया जिन्होंने उसको काउंटर वो किया, धीरे धीरे उनको साफ कर दिया गया, वो बात अलग है। बट उस एक पर्टिकुलर टाइम था जिसको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहते हैं, उसमें उन्होंने साइंटिफिक नॉलेज में बहुत ज़बरदस्त एटलीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, इब्न रुश्द एक नाम है, आपने सुना होगा, इस तरीके के लोग हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया इनके ट्रांसमिशन में भी और अपना खुद का भी वर्क प्रोड्यूस किया इन्होंने। तो बेसिकली जो आज के टाइम पे हम देखते हैं ना कि ग्रीक और रोमन टाइम की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिजर्व हो गई, जैसे मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता कि मार्कस ऑरेलियस की इन्फॉर्मेशन भी ऐसी प्रिजर्व हुई है। फॉर एग्जांपल स्टोइसिज्म की बुक्स हैं, स्टोइसिज्म की बुक इन पर्टिकुलर नहीं, लेकिन बहुत सारी ग्रीक नॉलेज जैसे एरिस्टोटल वगैरह का वर्क है, प्लूटो का वर्क है, वहाँ पे तो क्रिश्चियनिटी आ गई थी। उन लोगों ने बड़े बड़े हाई लेवल पे बुक बर्निंग शुरू कर दी थी जो रिलीजन से रिलेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ग्रीक फिलॉसफी ऐसी है जो रिलीजन को टोटली कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका, इनफैक्ट क्रिटिसाइज़ करती है कई बार। वो जो आज के टाइम पे दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसका रीज़न ही यही है क्योंकि अरब्स ने उन सारी बुक्स को वो कहीं ना कहीं से सोर्स करके ट्रांसलेट करवाया, पर्शियन स्कॉलर्स के थ्रू, जो उनके खुद के अरब स्कॉलर्स थे उनके थ्रू। तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था वो। और फिर क्योंकि यूरोप के उनसे डायरेक्ट ट्रेड लिंक्स थे और इंडिया से भी उनके ट्रेड लिंक्स थे, तो इन्फॉर्मेशन पास आउट हुई इस तरीके से। कुछ जगह पे मैंने ऐसा सुना है
कि एक बुक ट्रांसलेट करने पे एक ट्रांसलेटर को उस बुक के वेट के हिसाब से गोल्ड दिया जाता था, इतना अच्छा पैसा मिलता था। तो जब किसी भी चीज़ में ना जब पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, किसी भी ट्रेड में या किसी भी आर्ट में, तो वो आर्ट ऊपर जाएगी ही जाएगी। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल हमारे सामने है। जो लोग मूवीज़ बनाते हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं अगर मूवीज़ अच्छी हैं तो, या मूवीज़ हिट हैं तो। इसलिए आप देखोगे कि कई बार ऐसा आप सुनते हो कि हर बंदे को एक्टर बनना है, हर बंदे को मूवी मेकर बनना है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, समाज में उनका ओहदा बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि उस फील्ड में पैसा बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से आप इंटेलेक्चुअलिज्म में भी आप कर दो, आज $1 मिलियन है हर प्रोफेसर की, हर साइंटिस्ट जो डिस्कवरी के साथ आएगा उसको $1 मिलियन मिलेगा। आप देखो कितने ज़्यादा पैटेंट्स फाइल होने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका में 1800s में यही हुआ, हर बंदा कुछ नया डिस्कवर करता था, उसके साथ एक कंपनी लॉन्च कर देता था, मिलियनियर बिलियनियर बन जाता था। I mean, eventually. Western science has progressed in leaps and bounds, and today it's the most advanced science and technology in the world. It is all based on a foundation of Indian science. From the At least in terms of theory. Theory तो उन्होंने, theory का जो basis है वो यहीं से आया है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये कोई बुरी बात नहीं है कि उन्होंने उठा लिया यहाँ से सामान, क्योंकि उन्होंने उसको बेहतर बनाया और दुनिया में रिसोर्सेज प्रदान किए, चीज़ें प्रदान की जिसमें कि दुनिया आगे बढ़ पाई। आज हम एक कंफर्टेबल दुनिया में रहते हैं। तो ऐसे ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि उन्होंने इन चीज़ों को उठाया। तो आप इसके लिए हेट मत रखो ना अपने, ये मेरा ओपिनियन है, आप हो हेट मत रखना कि उन लोगों ने ऐसा किया। अगर वो कोट कर देते या अगर वो साइट कर देते तो थोड़ा सा डिसेंसी वाला काम होता। Middle Ages onwards, that's when the Europeans first came into contact with Indian scientific literature, and that's what they absorbed, incorporated into their own academic system, I would say, and improved upon that slowly. That's what happened. Okay, yes. लास्ट वाली जो उन्होंने बात की, ऑफ कोर्स सबको पता है, ये बहुत ही फेमस बात है। डार्क एजेस के बाद मिडिल एजेस में, ऑलमोस्ट लेट मिडिल एजेस में 13-14 सेंचुरी के बाद से उन्होंने जब चर्च और स्टेट को अलग कर दिया तो वो साइंटिफिकली लीप्स एंड बाउंड्स करने लगे प्रोग्रेस। उसकी जो काफ़ी सारी थियोरेटिकल बेसिस थी जहाँ से उन्होंने शुरुआत की, वो डेफिनेटली उसका बहुत मेजर चंक इंडिया से आया है और इस पर उन्होंने बिल्ड किया फर्दर। और जैसा कि मैं कह रहा था कि हमें इस बात को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि एक दूसरे के काम के ऊपर ही हम अकेला, हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अकेले इंडियंस भी क्या कर लेते हैं। इंडिया की आप हालत देख लेते 17th सेंचुरी में। तो अगर वो लोग इस काम को आगे नहीं बढ़ाते तो दुनिया शायद आज भी उतना आगे नहीं गई होती। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें उनकी तरफ बुरी सोच से नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया। अच्छी बात है किया, साइड कर देते तो और अच्छा हो जाता। सिंपल, बस ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।